برطانیہ پاکستان کو ریڈ لسٹس میں برقرار رکھے گا یا نہیں، فیصلہ آج ہوگا۔ پاکستان سمیت 12 ممالک کو ریڈ لسٹ سے نکالا جا سکتا ہے۔ برطانیہ نے پاکستان کو 6 ماہ سے ریڈ لسٹ والے ممالک میں شامل کر رکھا ہے۔ بھارت کو ڈیلٹا ویرینٹ کے باوجود 6 ہفتے قبل ریڈ لسٹ ممالک کی فہرست سے نکال دیا گیا تھا۔ برطانوی حکومت نے ہالیڈے میکرز اور ڈبل ویکسین والے افراد کے لیے مہنگا PCR ٹیسٹ بھی ختم کر دیا۔ برطانوی حکومت ٹریفک لائٹ سسٹم کی جگہ کرونا وائرس کی روک تھام کے لیے نیا نظام نیو ٹائر 2 سسٹم متعارف کرا رہی ہے۔ نئے سسٹم کے مطابق گو یا ڈونٹ کو ممالک کی فہرست تیار کی جا رہی ہے۔ برطانیہ دوسرے ممالک سے انگلینڈ پہنچنے والے افراد کے لیے قرنطینہ کی شرط برقرار رکھے گا، البتہ ڈبل ویکسینیشن والے افراد کے لیے آسانیاں ہوں گی۔ میچ دوپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ کیویز کو پھنسانے کے لیے اسپین کا جال تیار۔ شاداب خان کی معاونت کے لیے عثمان قادر اور زاہد محمود بھی شامل ہیں۔ کپتان بابر اعظم جیت کے لیے پرعزم۔ 25 شائقین اسٹیڈیم میں میچ دیکھ سکیں گے۔ میچ دیکھنا ہے تو کرونا ویکسین سرٹیفکیٹ اور شناختی کارڈ ساتھ لانا ہوگا۔ اور اب سیاسی میچ کی بات کرتے ہیں۔ چیئرمین سینیٹ مشن کوئٹہ کی ناکامی کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے حکومت بچانے کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ جام کمال PTI کے رہنما سردار یار محمد رند کے گھر پہنچ گئے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ سردار یار محمد رند نے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔ پارٹی کا اہم اجلاس بھی آج طلب کر لیا گیا ہے۔ اسی بارے میں مزید جان لیتے ہیں، رضوان سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رضوان، بتائے گا کن معاملات پر بات ہوئی اس ملاقات میں اور کیا رسپانس دیا گیا یار محمد رند کی جانب سے؟ ہاں جی بالکل، اس وقت بلوچستان میں جو باب پارٹی ہے اس کی بڑی اتحادی جماعت جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ آج جب سے اپوزیشن کی جانب سے تحریک عدم اعتماد لائی گئی، اس کے بعد چیئرمین سینٹ بھی یہاں پر ہیں اور اس وقت بھی میر عبدالقدوس بزنجو جو اسپیکر بلوچستان اسمبلی ہیں ان کی رہائش گاہ پر ایک ملاقات جاری ہے، جہاں پر ناراض ارکان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ بلوچستان جو ہے انہوں نے بھی جو ہے وہ پیش رفت کرنا شروع کر دی ہے۔ سردار یار محمد رند سے کچھ دیر قبل ان کی رہائش گاہ پر ان کی ملاقات ہوئی ہے اور یہاں پر جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈپٹی اسپیکر قومی صوبائی اسمبلی ہیں بابر موسیٰ خیل، وہ بھی یہاں پر موجود تھے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے حمایت کی جو طلب تھی وہ کی گئی ہے سردار یار محمد رند کی جانب سے، مگر جو سردار یار محمد رند جو پارلیمانی لیڈر ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے مشاورت کے لیے وقت مانگا ہے۔ ٹھیک ہے رضوان، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا، اسی بارے میں بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار سلیم بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سلیم بخاری صاحب آپ کے وقت کا۔ صادق سنجرانی صاحب نکلے تھے مشن کوئٹہ پر، لیکن کوئی خاطر خواہ نتائج اب تک تو سامنے نہیں آ سکے ہیں۔ جام کمال صاحب نے اب خود سے بھاگ دوڑ شروع کر دی ہے۔ کیا سیاسی حالات دیکھ رہے ہیں آنے والے دنوں میں آپ؟ دیکھیں، صورتحال بلوچستان میں ٹھیک نہیں ہے۔ کمال صاحب جو وہاں کے چیف کے اتحادی تھے، وہ جس طرح سے منہ موڑے ہوئے ہیں اور جس طرح سے اپوزیشن نے اور ناراض اراکین نے مل کے کیمپین چلائی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، جب دھرنا دیا تھا انہوں نے کافی طویل عرصے تک بیٹھے رہے، وہ ان کے ساتھ اسمبلی کے باہر جو سلوک ہوا تھا اس کے اوپر وہ احتجاج کر رہے تھے۔ تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ان کو اب اپنی چیف منسٹری سنبھالنے کے لیے شاید بہت محنت کرنی پڑے گی، مگر امکانات کم ہیں کہ وہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ان کے اگینسٹ آیا ہوا ہے اس کو ناکام بنایا جائے۔ بہت امکانات ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ رند صاحب جو تحریک انصاف کے لیڈر ہیں، اگر وہ بھی وقت مانگ رہے ہیں ان سے اور وہ بھی ان کا ساتھ دینے پر آمادہ نہیں ہے، تو مجھے باپ کی وہاں جو حکومت ہے اس کا مستقبل جو ہے وہ بہت ہی مشکوک بھی دکھائی دیتا ہے اور بہت ہی معدوم بھی دکھائی دیتا ہے۔ ٹھیک، بخاری صاحب ساتھ ہی موجود رہیے گا، اسی بارے میں بات کریں گے۔ سینئر تجزیہ کار نوید چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ لگ یوں رہا ہے کہ جیسے جام کمال کے لیے مشکلات بہت زیادہ بڑھ چکی ہیں، اگر انہوں نے ناراض ارکان کو سر منانے میں تھوڑی جلدی کر لی ہوتی تو شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ یقینی طور پر اس وقت جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس میں یہ نظر آ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ جام کمال جو ہیں وہ ہاٹ واٹرز میں ہیں، بہت مشکل میں ہیں وہ، اور صادق سنجرانی صاحب جو گئے تھے ان کو ریسکیو کرنے کے لیے اب یہ اطلاع آ گئی ہے کہ وہ ناکام لوٹے ہیں وہاں سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوششیں باہر سے کی جا رہی تھیں وہ برابر ثابت نہیں ہو رہی۔ پھر رند صاحب کے گھر جانا جو ان کا ہے، ان کو ملنے جانا، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا پیغام ہے۔ وہاں سے بھی یقین دہانی کوئی نہیں ان کو ملی، کوئی فیور ان کو بھی نہیں ملی۔ انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں غور کر کے بتاؤں گا۔ اور ان سے جو دوسرا گروپ ہے، آپ قدوس بنجو صاحب کو دیکھ لیں،
बाकी जो अरकान हैं वो बहुत ज्यादा नाराज हैं इनसे। जिस तरह बजट के मौके पर असेंबली में तमाशा किया गया, अरकान को बख्तरबंद गाड़ी के जरिए हटाया गया, जख्मी भी किया गया और एक अजीब व गरीब कैफियत पैदा कर दी गई थी, उससे बाप पार्टी के जो अपने रैंक्स हैं उसमें बहुत शदीद किस्म के इख्तलाफात उभर के सामने आए। और जाहिर है जो अपोजिशन पार्टियां थी वो तो पहले ही इस हवाले से बात कर रही हैं कि जाम कमाल बतौर वजीर आला मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए। अच्छा, यार मोहम्मद अलीम का भी यही कहना है तो वो पीटीआई के बलूचिस्तान के सरबराह, लेकिन वो भी जाम कमाल साहब के बारे में कोई मुस्बत राय नहीं रखते। तो जो संजरानी साहब का दौरा नाकाम हुआ है, ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ा सिग्नल है। इससे लग यही रहा है कि अब जाम साहब को काफी मुश्किलात पेश आएंगी अपनी वज़ारत आला बरकरार रखने में। ठीक, बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में बाप पार्टी की जानिब से क्या इकदाम उठाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। सीनियर तर्जुमाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर, आपका भी बहुत शुक्रिया। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए उन्हें अमेरिका ले जाने के लिए तैयारियां जारी हैं। वीज़े भी जारी कर दिए गए हैं। एयर एम्बुलेंस का इंतज़ार किया जा रहा है। मज़ीद जान लेते हैं राहील बेग से। राहील, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की जो तबीयत की अगर बात की जाए तो उनकी हालत कभी संभलती है तो कभी बिगड़ती है। और सबसे जो अहम मसला था उमर शरीफ की रवानगी के लिए अमेरिका के वीज़े का, जो कि आज हल हो गया है। वीज़े जारी कर दिए गए हैं, जबकि उमर शरीफ, उनकी अहलिया और उनके साहबजादे उनके साथ जाएंगे। जबकि अमेरिका में रीमा के जो शौहर हैं डॉक्टर तारिक शाहब, वो उनके तमाम इलाज के साथ साथ एयर एम्बुलेंस के भी इंतजाम से कर रहे हैं। अब इंतज़ार है तो एयर एम्बुलेंस का इंतज़ार है कि कब वो अमेरिका से रवाना होगी और उसके बाद डॉक्टरों की एक टीम उनका तिब्बी मुआयना करेगी और उसके बाद अमेरिका रवानगी के लिए तैयार होंगे। और उनके बेटे जवाद उमर का भी यही कहना है कि एयर एम्बुलेंस का जो प्रोसेस है वो कर दिया गया है, वहाँ पर वीज़े भिजवा दिए गए हैं और वीज़े के बाद जब तक वहाँ से कोई पैगाम आएगा उसके बाद ही कोई दिन या तय हो पाएगा कि कब उमर शरीफ को अमेरिका इलाज के लिए रवाना किया जाएगा। अब ताहाल क्योंकि एयर एम्बुलेंस का ही इंतज़ार है कि कब वहाँ से रवाना हो और उसके बाद तिब्बी मुआयने के बाद उमर शरीफ को अमेरिका इलाज के लिए मुंतकिल कर दिया जाएगा। सऊदी अरब में कोरोना SOPs नज़रअंदाज करने वाले होशियार हो जाएं। सऊदी हुकूमत ने पाबंदियों की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माना आयद करने का ऐलान कर दिया। पहली बार कवानीन तोड़ने पर 1000 जबकि दूसरी बार में 1 लाख रियाल का जुर्माना किया जाएगा। कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी महंगी पड़ सकती है। सऊदी अरब ने SOPs की खिलाफ वर्जी करने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक समाजी फासले की खिलाफ वर्जी, अवामी और निजी मकामात पर जिस्म का दर्जा हरारत चेक कराए बिना दाखिल होने समेत हिफाजती इकदाम की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। सऊदी वजारत दाखिला का कहना है कि पहली बार कोरोना पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने पर 1000 रियाल यानी 44,770 पाकिस्तानी रुपए का जुर्माना आयद किया जाएगा। लेकिन अगर वही शख्स अगली बार फिर कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़ा गया तो जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ाकर 1 लाख रियाल यानी 44,76,000 पाकिस्तानी रुपए कर दी जाएगी। अहम खबर आपको देंगे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशत गर्द मारे गए। दहशत गर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन किया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशत गर्द मारे गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पेट्रोल की बढ़ती कीमत का दिफा करने मैदान में आ गए। बोले, तेल की कीमतें अब भी खित्ते में सबसे कम हैं। पाकिस्तान की कुव्वत खरीद भारत से बेहतर है। उधर सहाफ़ी के इस्तीफे के सवाल पर असद उमर बात गोल कर गए। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। पाक ताजिक बिजनेस फोरम के दौरान एक ताजिर ने वज़ीर आज़म इमरान खान को शेर सुनाए और कंटेनर भी याद दिलवा दिया। PTV ने आवाज़ दबाकर मामला संभालने की कोशिश की मगर तब तक देर हो गई थी। दोशंबे में पाक ताजिक बिजनेस फोरम के दौरान एक दिलजले ताजिर ने वजीर आजम को शेर सुनाया। पाकिस्तान कह रहा है कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ, मेरे लहू की बहार कब तक, मैं लड़खड़ाया तो क्या करोगे।
वजीर आजम ने शेर सुनकर सीने पर हाथ रखा और सर झुकाकर यूं शुक्रिया अदा किया जैसे किसी ने उनकी तारीफ कर दी हो। शायद वजीर आजम समझ ही नहीं सके कि इस शेर में शायर क्या कहना चाहता है। इस शेर में पाकिस्तान उनसे मुखातिब है और कह रहा है, कभी खुद भी जख्म खाओ, तकलीफ उठाओ, कब तक मुझे ही लहू लहू किया जाता रहेगा, मेरी बदौलत ही तुम सब हो, मुझे कुछ हो गया तो सोचो क्या करोगे। तालियां बता रही थी कि वजीर आजम के सिवा बाकी लोग शेर का मतलब समझ गए। एक और शेर जो अधूरा रह गया मगर असर खूब कर गया। जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो। अधूरे शेर को हम मुकम्मल कर देते हैं। इतने जालिम न बनो, कुछ तो मुरव्वत सीखो, तुम पे मरते हैं तो क्या मार ही डालोगे हमें। शेर इतना सादा और आसान था कि सबकी समझ में आ गया, इसीलिए रज़ाक दाऊद ने इशारे किए और पीटीवी ने आवाज दबाकर बात संभालने की कोशिश की। तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। आपको हम खबर से आगाह करते चलें कि पाकिस्तान ताजिकिस्तान मुश्तरका बिजनेस परदेश में अगर कोई पाकिस्तानी अपने वजीर आजम को कहे कि अब तो आप एक कैदी हो गए हैं, पता नहीं किन के चक्कर में पड़ गए हैं, शेर में जालिम और बेमुरव्वत भी ठहरा दे और ये सब कुछ सारी दुनिया देख रही हो, तो हाथ के इशारे और सिर्फ पीटीवी पर नशरियात को म्यूट करना काफी नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी ने सी पैक मंसूबों पर काम की रफ्तार पर सवाल उठा दिए। सेनेटर सलीम मांडवी वाला बोले, चीन से सी पैक की पेशरफ से मुतमईन नहीं है। मौमन खुसूसी सी पैक खालिद मंसूर ने भी मंसूबे पर सुस्त रवि का एतराफ़ कर लिया। कमेटी ने आइंदा इजलास में चीनी कंपनीज को तलब कर लिया। इस्लामाबाद से वकास अजीम की रिपोर्ट देखते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए महाजरीन की मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती समेत अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदादी कामों पर भी बातचीत हुई। इस मौके पर आर्मी चीफ ने कहा कि आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए कोशिश करे। आर्मी चीफ ने UNHCR की बहरान में कलीदी किरदार की तारीफ की। UN हाई कमिश्नर ने पाकिस्तान में 40 लाख अफगान महाजरीन की मेज़बानी को सराहा। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि जब तक हमारे कांधों पर सर है, कश्मीर के लिए लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म कश्मीर पर थर्ड ऑप्शन की बात करके क्या कहना चाहते हैं। कश्मीर पर कोई दूसरा ऑप्शन कबूल होगा और ना किसी को कश्मीर पर सौदेबाजी की इजाज़त। इस्लामाबाद से गौहर महसूद की रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद में सैयद अली गिलानी की याद में ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद हुआ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का खिताब में कहना था कि सैयद अली गिलानी को भी अशरफ सहराई की तरह रात के अंधेरे में दफन कर दिया गया। जिंदा गिलानी से शहीद गिलानी भारत के लिए ज्यादा खतरनाक साबित होगा। कश्मीर के लिए सफीर का किरदार अदा करने के दावेदार वजीर आजम आज बात करने से डरते हैं। आज के सरकार ने भी कहा था मैं सफीर बनूंगा, सफीर नहीं बन सके। जुमे जुमे को एहतजाज जारी रखूंगा, भूल गए और तारीख का बद नसीब हुकूमत है मौजूदा हुकूमत, जिनके दौर में 5 अगस्त 2019 को इंडिया ने हमेशा के लिए मकबूजा कश्मीर की रियासत को हड़प किया। अमीर जमात इस्लामी का कहना था कि जब से भारत ने कश्मीर पर काला कानून पास किया है, जमात इस्लामी की क़यादत कारकुनान समेत जेलों में है। कश्मीर पर पाकिस्तानी हुक्मरानों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की कि जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर पर जब पाबंदी लगी और हमारे जमात इस्लामी पाकिस्तान के 4000 से ज्यादा अरकान और कारकुनान जेलों में डाले गए और जमात इस्लामी मकबूजा कश्मीर के अमीर को जेल में डाला गया, उस पर मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने तबसरा किया कि जमात इस्लामी एक रोशनी है, आप इसको कत्ल नहीं कर सकते। इस मौके पर साबिक सफारतकार अब्दुल बासित, रुकन कौमी असम्बली अब्दुल कबीर चित्राली, सेनेटर मुश्ताक अहमद खान, सेनेटर कामिल अली आगा, कश्मीरी रहनुमा गुलाम मोहम्मद सफ़ी और नायब अमीर जमात इस्लामी मियां असलम ने सैयद अली गिलानी की मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए की जाने वाली जद्दोजहद पर खिराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन अयाज मलिक के साथ गौहर महसूद, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।